बट मैंने अभी तक पैच टेस्ट नहीं किया है. लेट मी डू द पैच टेस्ट एंड देन विल फाइंड आउट वेदर इट मैचेस और नॉट, या फिर एक और ब्लंडर होने वाला है. Hello everyone and welcome back to my channel. This video is going to be about the makeover of my living room, and there's a lot more coming up ahead in this video, so stay tuned. Here's a before and after clip of my living room. At first, I would like to update you all about my old sofa, which was from Pepperfry. It was not in a very good condition, so I spoke to many carpenters and most of them suggested me that it would be a wasteful choice to even try to refurbish or reuse it. So the only option left for us was to get rid of it and replace it with a new one. So I went ahead and got a new one customized according to my requirements. All the problems related to this old sofa because of which we couldn't refurbish it, वो सब कुछ मैं आपसे एक separate video में share करूँगी. So it's just an update that we have invested on a new one. This makeover process started right after we returned from our New Year trip. That is why this mess. All the shopping, traveling, and this table became a dumping ground for all of us. और इसलिए मैंने सबसे पहले इन सर्फेसेस को टैकल किया है. आई decluttered a lot of things, then I cleaned these surfaces and then the organization. और उसके बाद मेरा ब्रेन एक्चुअल में काम करना शुरू करता है कि मुझे आगे क्या करना है. Of course, I had the plan of doing this makeover for a very long time now, but I can't move ahead until and unless my basic chores are done. So, जो ये frame आप देख रहे हो ये मैंने IKEA से लिया है. Also, this tissue paper that you see here is from IKEA. It has this floral print on it and ये वो वैसा Mod Podge tissue papers होते हैं, ये वैसा वाला tissue paper है. Using these two, I have created a very simple and easy DIY wall decor जो कि आप में से कोई भी बना सकता है. बहुत simple, easy and beautiful. And अगर आपने कोई craft कभी नहीं किया है, DIY नहीं किया है, तो भी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो. ओके, माई फोकस वॉज टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि जो मेरा सोफ़ा है वो मैंने डिज़ाइन करवाया है थोड़ा क्वर्की स्टाइल में. सो आई वॉन्टेड माई सोफ़ा टू रिमेन द सेंटर पीस ऑफ दिस सेटअप, द फोकस ऑफ दिस सेटअप. सो अगर मैं वॉल डेकोर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती तो देयर वर चांसेस कि या तो ये पूरा सेटअप जो है बहुत क्लटर्ड दिखता, या तो फिर ऐसा होता है कि सारा फोकस जो है वॉल डेकोर पे चला जाता, जो मैं नहीं चाहती थी. बट इफ़ यू वांट यू कैन कवर द होल सरफेस यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्टिकर और वॉलपेपर और एनी रैपिंग पेपर या फ्लोरल प्रिंट वाला कोई क्लॉथ है आपके पास, आप उसको भी फ्रेम कर सकते हो. इट विल बिकम अ लवली वॉल डेकोर. The very next step of this makeover was to fill up all the drill holes that were created because of all the nails. तो उनको मैंने POP यूज़ करके फिल अप किया है एंड देन थोड़ा सा स्क्रैपिंग करके उनको लेवल में कर दिया एंड दैट्स इट. उसके बाद जब आप उनको पेंट करोगे तो पूरा वॉल रेडी हो जाएगा फॉर योर मेकओवर. As soon as I hung the frame on the wall, I realized that it is looking way too minimal and this is not something I expected it to look like. इसलिए I immediately realized that I need to pair it up with something that would work as a combo on the wall. This entire setup would just spice up. So what I did was I used these two spare boxes and covered them with the same tissue paper, and then yes, you will see the final look at the end again. And it just looks lovely now. Next comes the most crucial part of this makeover, which is picking the correct color palette. I basically had this plan of creating a focal wall, or you can call it a statement wall, and I wanted it to be green in color, but not the typical green wala green. Instead I wanted a pastel green. उसमें भी बहुत से shades होते हैं, but eventually बहुत देर शॉप में खड़े रहने के बाद we managed to find the correct green that we wanted.
This is the wall that I was talking about. You see a lot of scribbling all over. There were so many patches as well. तो ये सब मेरी डॉटर ने ही किया था and I wanted a new look for this wall now because अभी काफ़ी टाइम हो गया है, ये wall decor जो है बिल्कुल ऐसे ही सेम है. So the first thing I did was I filled up the drill hole and then जो ये डबल साइडेड टेप के आपको मार्क्स दिख रहे हैं इनको मैंने स्क्रैप करके लेवल में किया. उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई करके पूरे वॉल पे और इसको हमने 6-7 घंटे छोड़ दिया क्योंकि ये जो चॉकबोर्ड पेंट है इसको थोड़ा सा कंसील करना डिफ़िकल्ट था. दिस इज़ द नेक्स्ट वॉल दैट वी मूव टू एंड वी न्यू कि उस वॉल को अभी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम है. सो वी वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ ईच सेकेंड बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ड्रैग दिस मेक ओवर फॉर मोर देन 2 to 3 days. एंड येस, सो यूजिंग अ मरकरी स्केल हमने पहले तो लाइन्स ड्रॉ किए कि पैनल्स स्ट्रेट लग रहे हैं या नहीं. उसके बाद मैंने वॉल में प्राइमर अप्लाई किया है मास्किंग टेप लगा के. एंड बाय दैट टाइम मेरे हस्बैंड ने जो पैनल्स हैं उनको कट किया इन एग्जैक्ट लेंथ और उसके बाद मैंने इनको पेंट कर लिया है इन वाइट कलर. एंड येस, दीज पैनल्स यू कैन वेरी इजीली फाइंड इन योर लोकल मार्केट्स या किसी भी कारपेंटर से भी आप बनवा सकते हो. और जो ये पैनलिंग का काम है ना, या आप किसी भी एक्सपर्ट से भी करवा सकते हो. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी ईजी है तो मैंने इसलिए खुद ही अपने हाथ से कर लिया ये सारा कुछ बिकॉज यू नो इट्स सो सैटिस्फाइंग एंड आई लव डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑन माई ओन. तब तक ये प्राइमर भी ड्राई हो गया था सो आई अप्लाइड द वाइट पेंट ऑन इट. ओके, सो नाउ देयर इज़ अ क्विक अपडेट. अनफॉर्चुनेटली जो वाइट वॉल मैंने पेंट किया था वो अब बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है एंड आई लिटरली डोंट लाइक द शेड एट ऑल. क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था कि अगर ये शेड मुझे अच्छा लग जाएगा, मुझे पता तो था कि ये मिसमैच हो चुका है बट मैंने ये सोचा था कि अगर ये मुझे पसंद आ जाएगा तो आई विल चेंज द कलर ऑफ द रिमेनिंग वॉल एज वेल टू दिस वाइट. बट आई डोंट लाइक इट एट ऑल और मुझे अब जो है इसका एग्जैक्ट कलर चाहिए जो मेरा पुराना था. सो इनिशियली मैंने उसको ये इसलिए नहीं किया क्योंकि माई ओनली फोकस वॉज टू कंसील द मार्क्स एंड वॉट एवर पैचेज वर देयर ऑन द वॉल. वो मेरा मेन फोकस था एंड आई न्यू कि नहीं पसंद आएगा तो मैं बाद में इसको चेंज कर दूँगी. So for some reason the shop guy was also not able to help me with the exact shade. So fortunately मेरे पास जो भी the person who was in contract for our society and all these things उसका नंबर था. I contacted him and he told me the exact shade and I have got that as well. But मैंने अभी तक पैच टेस्ट नहीं किया है. Let me do the patch test and then we'll find out whether it matches or not या फिर एक और ब्लेंडर होने वाला है. Yeah, so this is the shade that I want and this is the shade I have right now. So now let us do the patch test to find out whether it matches this one or not. Yeah, it looks quite similar. Okay, we'll find out after it dries. Then comes my favorite part which is painting the walls. I don't know for some reason मैं मेकओवर के स्टार्टिंग से बस इसी मोमेंट का वेट कर रही थी कि मैं वॉल्स कब पेंट करूँ. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लाइकिंग द शेड आपको बहुत ईजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स मिल जाएगा रिगार्डिंग द एग्जैक्ट शेड एंड द नेम, द कोड नंबर एज वेल. सब कुछ आपको ब्रांड वगैरह सब मिल जाएगा बहुत ईजिली. एंड अगर आप भी वॉल्स पेंट करना चाहते हो और हेजिटेंट हो एंड आपको लग रहा है कि थेरेप्यूटिक होगा सो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई. Trust me, it is really very therapeutic and you must give it a try. Just keep a bit of these suggestions in your mind कि always use a masking tape when you're painting ताकि जो भी आपके स्ट्रोक से इधर उधर अगर निकले तो जो फिनिशिंग में है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आए. अदर देन दैट यूज़ अ रोलर, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है. ब्रश के स्ट्रोक से कई बार ब्रश का मार्क रह जाता है. एंड अदर देन दैट यूज़ वाटर बेस्ड पेंट्स. उससे क्या होता है कि जो मेस है वो कम क्रिएट होता है एंड जो स्टेन्स है वो ईजिली क्लीन हो जाते हैं बीट ऑन योर बॉडी और टाइल्स. मैंने ये आर्च पैटर्न क्रिएट किया है. आई रियली वॉन्टेड दिस आर्च पैटर्न ऑन माई वॉल एनीवेयर इन द हाउस एंड आई गॉट इट डन. इसको क्रिएट करना भी बहुत ईजी है. मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ. आपको बहुत इजीली यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे कि क्या डायमीटर रखना है, रेडियस कितना रखना है, कैसे करना है. जस्ट यूजिंग अ पेंसिल, अ थ्रेड एंड अ नेल आप इसको बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो. 2 कोट में ही ये वॉल में फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ गई थी. इस वॉल के अलावा जो दूसरा मैंने पैनल वाला वॉल क्रिएट किया है दिस वन, इस पर भी बस 2 ही कोट लगे एंड बोथ द वॉल्स आर एब्सोल्युटली रेडी.
इसके बाद बारी आई हमारे टीवी वॉल की, जिसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था जब मैंने पिछली बार इसका मेकओवर अपलोड किया था। या सारे जो मेकओवर्स के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इतने सारे कलर्स एक साथ नहीं जा रहे हैं, सो आई वॉन्टेड टू चेंज द कलर। एंड कलर क्या चेंज करना, आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी वाइट। मैं चाहती थी कि जितना हो सके मैं मिनिमल और इसको सिंपल रखूँ, ताकि जो बाजू में जो ग्रीन आर्च मैंने क्रिएट किया है वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो पाए। एंड येस, रिदम ने भी बहुत हेल्प किया है, जस्ट लाइक माई अदर मेकओवर्स। शी वॉन्टेड टू पेंट दिस टाइम, क्योंकि वो बहुत देर से देख रही थी हम लोग करते हुए। तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रहे थे, तो आई थॉट कि चलो रिदम को प्राइमर अप्लाई करने दे देती हूँ। एंड शी वॉज लर्निंग हाउ टू डू द स्ट्रोक्स एक्चुअली, एंड शी डिड अ वेरी गुड जॉब। आफ्टर 2 कोट्स द वॉल वॉज एब्सोल्युटली रेडी। जितने भी पैचेस थे, मार्क्स थे, एंड ऑल्सो जो पेंट को हम कंसील करना चाह रहे थे वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से कंसील हो गया था। एंड द वॉल वॉज रेडी फॉर इट्स सेटअप। एंड जो सेटअप है मैंने वो बिल्कुल पहले जैसा ही रखा है, क्योंकि आई थिंक मैं अभी भी उससे बोर नहीं हुई और मुझे अभी भी वही सेटअप बहुत पसंद आता है। सो मैंने उसको बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे पहले था। जो आइकिया वाला शेल्फ है वो ऊपर लगा हुआ है। एंड उसके बाद मैंने जितने भी मास्किंग टेप से उनको रिमूव किया। ये सारा काम हम रात में ही जग कर रहे थे। एंड यू कैन सी कि फिनिशिंग बहुत ही प्रॉपर आई है हर चीज़ की। और ये जो स्टेन्स वगैरह आप देख भी रहे हो थोड़े बहुत फ्लोर पे लगे हैं एंड टाइल्स में इधर उधर, वो सब कुछ बहुत आसानी से बाद में मैंने पानी से ही निकाल लिया है। अब हम लोगों ने इन वुडन पैनल्स को इंस्टॉल किया, बट नेल से इंस्टॉल करने से पहले हमने इनको मास्किंग टेप से फिक्स किया, ताकि हम चेक कर सके कि सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है या नहीं, बिकॉज वी स्टिल हैड द ऑप्शन ऑफ मेकिंग चेंजेस इन केस वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम. So once we were sure, we went ahead and nailed them on the wall. Maybe this is the reason I'm so much into these kind of personalized decors, where you have a lot of scope when you wish to make changes, especially for a person like me who can't live in the same setup for too long. My taste of decor and color preferences change every year. These kind of replaceable and reusable decors give me a free hand to go ahead and experiment. And in any case I don't get an expected outcome, I can still make changes to fix it as many times I wish. वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, ये मेकओवर आप लोगों को पसंद आया है. जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे बाकी के मेकओवर एंड डेकोर वीडियोस को पसंद किया है, इसको भी करेंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अदर देन दैट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि डेकोर एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड और किस तरीके के व्लॉग एंड वीडियोज़ मेरे चैनल में आप देखना पसंद करोगे. एंड ऑल्सो मेरे पहले के व्लॉग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही प्यारे होते हैं. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएंगे. एंड जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड येस, तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.